विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ JP ਨੱਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਮੋਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਗਰ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਲੀ ਉન્નਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ CM ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਖਪਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਰਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ सबसे बड़ा उपहार है, किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। ਅੱਜ ਇਹ सम्मान ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।
जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु का खालसा। आज के इस कॉफी टेबल बुक लॉन्चिंग में मंच पर विराजमान जस्टिस जीएस सिस्तानी जी, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला और राज्यसभा में मेरे साथी रहे सरदार सुखदेव ढींगसा जी, हमारे एक्स एमपी त्रिलोचन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी हरमीत सिंह कालका जी, मेरे सहयोगी जिनके साथ हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं मनिंदर जी सिंह सिरसा जी, हमारे इस कॉफ़ी टेबल बुक के ऑथर और हमारे साथी प्रबलीन सिंह जी, और हमारे आउटलुक के पब्लिशर संदीप घोष जी, यहाँ सभी सिंह सभा के सदस्यगण और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारी अधिकारीगण और सिख भाई सज्जन वृंद, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च में आए हैं। सबसे पहले तो आयोजकों की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें बहुत स्पष्ट रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सिख कौम के लिए, सिख धर्म के लिए जिस तरीके से योगदान किया है उसके बारे में बहुत तफसील से हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातों को रखा है। मैं सबसे पहले तो प्रबलीन जी को, जो इसके ऑथर हैं, और आउटलुक के हमारे संदीप घोष जी को धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं, जिन्होंने ये प्रयास किया कि देश के सामने, दुनिया के सामने ये ध्यान में आए कि मोदी जी ने किस तरीके से 9 साल के अंदर सिख कौम के लिए, सिख धर्म के लिए और मुख्य धारा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया। इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं सिरसा जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस विचार को आगे प्रतिपादित किया, रखा हम सबके सामने, और जिसको इम्प्लीमेंट करने में हमारे साथियों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक सकारात्मक विचार लोगों के मन में, जिस तरीके से देश की एकता अखंडता के लिए सिख समुदाय ने, सिख कौम ने, सिख धर्म ने काम किया है, वह भी दुनिया के सामने आएगा। और एकता के लिए जो हमारे सिख गुरुओं ने और राष्ट्रभक्ति के लिए जिन कामों को किया है, वह भी दुनिया के सामने सही रूप में रखा जाएगा। यह कॉफ़ी टेबल बुक इसमें काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम सब लोग जानते हैं कि सिख गुरुओं से जो हमको प्रेरणा मिली, उसने समाज को इकट्ठा रखने में, देशभक्ति का जज्बा पैदा करने में, धर्म के प्रति समर्पण रखने में और एकता लाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलते हुए भारत देश को मजबूत बनाने में सिख कौम का योगदान और उसके दृष्टि से किस तरीके से राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने के लिए सिख धर्म ने अपने आप को कुर्बान किया, ताकत लगाई, पूरे जोर शोर से लगे, यह भी दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आएगा, ऐसा भी मेरा मानना है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और उनका योगदान के बारे में चर्चा की है। संदीप घोष जी कह रहे थे कि ही इज born in a Hindu family, but he is a Sikh by valor, by courage, शौर्य से, साहस से वो सिख हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, और मैं सहमत इसलिए हूं
क्योंकि कोई और प्रधानमंत्री, क्योंकि ये जितने भी मसले उन्होंने सॉल्व किए, ये कोई मसले कोई 10 दिन के नहीं थे। ये सारे मसले 75 साल, 70 साल, 30 साल, 35 साल ऐसे मसले अटके हुए थे। लेकिन उन मसलों को अगर निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का काम किया तो ये उनका साहस, उनकी दूरदृष्टि और उनका शौर्य बताता है। यह भी हमको समझना चाहिए। नेतृत्व तो घबरा जाता है कई बार, फैसला करें कि ना करें, जैसे है वैसे चलने दो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी कुर्सी की चिंता नहीं की। उन्होंने हमेशा कौम की चिंता की, देश की चिंता की, और देश के लिए जो आवश्यक हुआ वो उन्होंने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जो सिख गुरुओं से हम लोगों को सीख मिली, सर्वजन हिताय, सबका हित हो, देश की एकता अखंडता बनी रहे, सबको एक होकर के राष्ट्रीयता के लिए काम करें, और जिसमें सिख कौम सबसे आगे रही है, तो उस तरीके से देश को भी देखने की आवश्यकता है। इस बात को निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास किया। बहुत सी बातें जो कॉफ़ी टेबल बुक में लिखी गई हैं उसको उदाहरण के साथ उद्धृत किया सब लोगों ने। सिस्तानी साहब ने, जस्टिस सिस्तानी जी ने किया, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने किया, त्रिलोचन सिंह जी ने किया, और सिरसा जी तो निश्चित रूप से उन सारी बातों को तो मैं बहुत दोहराना नहीं चाहता। लेकिन एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल कमिटमेंट प्रधानमंत्री ने दिखाई और जो सोच दिखाई, अब अगर हम बात करें हेमकुंड साहब की, तो जाते तो सब थे, देखते तो सब थे, सबको पता था, और हेमकुंड साहब का स्थान क्या है यह भी सब लोग जानते थे। लेकिन 1163 करोड़ रुपए लगा करके उसको बना करके एक दिन की यात्रा को 45 मिनट में करने की जो योजना बनाई वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ऐसा नहीं है, यानी 12.5 किलोमीटर का रास्ता 45 मिनट में अब कवर होगा, और एक दिन का, और जाना, आप सब लोग, हम सब लोग पहाड़ में रहते हैं, हमें मालूम है, दिखता आसान है, जब चढ़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि क्या यात्रा होती है। लेकिन उसको मुख्य धारा में लाना, यह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है कि किस तरीके से। अभी सब लोगों ने चर्चा की, सभी प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपना वक्तव्य रखा है। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के अपने कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में जो 400 साला मनाया गया वह लाल किले के प्राचीर से मनाया गया। और जैसा सिरसा जी ने कहा, और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लाल किले की दीवारें जो उस समय इसके साक्षी थे, वो आज गुरु तेग बहादुर जी के शौर्य की, त्याग की, तपस्या की गाथा भी वही पत्थर सुन रहे हैं, और वो हमको। अभी हमारे लोग, बहुत से लोग पाकिस्तान से आए, बहुत से लोग अफगानिस्तान से आए, हजारों फैमिलीज आई। ये सीएए का मामला, ये सिटीजनशिप देने का मामला, उनको यहाँ पर बसाने का मामला, उनको लाने के लिए हर तरीके का प्रयास करना, और जो स्वरूप आए, अभी तालिबान ने जब अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, जब स्वरूप आए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर के देखा कि कोई भी सिख भाई वहां से जो आना चाहता है उसको दिक्कत ना हो, और उसको लाने में कोई भी कमी नहीं रखी गई। ये भी हमारे साथ। और मुझे याद है कि स्वरूप को लाने का सौभाग्य, सिरसा जी आपके साथ मुझे भी वो सौभाग्य मिला कि मैं उसको साथ ला सका, और उसको आज यहाँ पर स्थापित किया गया। अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें, जो हमारी चीज़ें देश से बाहर चली गई थी, उसको भी लाने के लिए
अमेरिका को कन्विंस करना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और 150 से ज्यादा आर्टिकल्स जो हमारे देश से चले गए थे, जो आर्टिफैक्ट्स थे, जिनकी आवश्यक जो ऐतिहासिक थे, उनको वापस लाने का काम वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव से हुआ। और उसमें गुरु हरगोविंद सिंह जी का जो हमारा पेश कब्ज था वह भी वापस आया, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से उसी तरीके से अगर हम देखें, अभी बातचीत हुई तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब ने बताया कि किस तरीके से गटका को आज वो डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, और हमारे नेशनल गेम्स 2023 के अक्टूबर में वो डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स के रूप में वह हमारे बीच में होगा, यह भी हमको ध्यान रखना। ये सब बातें बताती हैं कि मुख्य धारा में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णयों ने एक मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। एक विषय का जिक्र नहीं आया। हमें मालूम है कि हमारे सिख समुदाय के लोग, सिख कौम के लोग, सिख धर्म के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं, और सबका आराध्य स्थान, सबका पूज्य स्थान वह हरमंदिर साहब है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में हरमंदिर साहब नहीं आता था। दुनिया भर के सिख भाई हरमंदिर साहब को अरदास के रूप में, हरमंदिर साहब को आदर के रूप में अपने जीवन का बहुत अंश देना चाहते थे, लेकिन एफसीआरए न ग्रांट होने के कारण वह उससे वंचित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरमंदिर साहब को एफसीआरए की ग्रांट परमिशन दी, और आज दुनिया भर के हमारे सिख भाई हरमंदिर साहब में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई। ये भी हम सब उसी तरीके से लंगर में ईटेबल आइटम्स को लेकर के अब जीएसटी लगा, तो जीएसटी तो ओरिजिन से लगता है, तो कौन सा सामान लंगर में जा रहा है और कौन सा सामान होटल में जा रहा है इसका कैसे पता चलता। लेकिन लंगर में जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, आईजीएसटी नहीं लगनी चाहिए। ये फैसला, ये तय करना कि नहीं वो एक पुण्य कार्य के लिए, कार्य के लिए जा रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, तो भारत सरकार ने तय किया और सालाना 325 करोड़ रुपए वो वापस देने का तय किया, ताकि आपका जीएसटी माफ हो सके, इसकी भी व्यवस्था की गई। करतारपुर साहिब के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं। ये ठीक है, 4.2 किलोमीटर की सड़क बनी, करोड़ों रुपए खर्च हुए, ये सब बातें हैं, और इसके साथ साथ फ्री ट्रैवल की वीज़ा और ये सारी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन ये 75 साल से फैसला क्यों नहीं हो रहा था? ये फैसला इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यह मसला बड़ा पेचीदा था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पेचीदगियों से गुजरना था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पेचीदगियों से गुजरना था, इसको सिक्योरिटी फोर्सेस के पेचीदगियों से गुजरना था, इसको इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो दिक्कतें आती है उससे गुजरना था, और इस कारण से कोई भी इसको हाथ नहीं लगाता था। चलता है, चलेगा चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां भारत की सुरक्षा की चिंता भी की, डिफेंस को भी एड्रेस किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी एड्रेस किया, इंटेलिजेंस को भी एड्रेस किया, और सिक्योरिटी को भी एड्रेस किया, और जाने की व्यवस्था की गई। आज 15,000 लोग प्रतिदिन के हिसाब से जा सकते हैं, ये व्यवस्था अगर की है तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से आज लोग वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके का हम सबको देखने को मिला है। और वहाँ जो सुल्तानपुर लोधी का जो रेनोवेशन हुआ, जो रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ 550 पर्व पर, वह भी हम सब लोगों को देखने को मिला है, वह भी हम सब जानते हैं। उसी तरीके से सिख टीचिंग्स, हमारा सिख धर्म की इंटरनेशनल लेवल पे टीचिंग्स हों, और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज़ और ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में
इसको स्थापित करने का काम भी किया, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। गुरबानी को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाए, ये सोच भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रही। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 5 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो गया है और 15 भाषाओं में ट्रांसलेशन चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को की भी अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी गुरबानी का ट्रांसलेशन होना चाहिए और यूनेस्को के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी इस बात का प्रयास चल रहा है। जहाँ तक गुरु गोविंद सिंह जी का 350 प्रकाश पर्व मनाया गया, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद का जाना पटना साहब तो ये हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से जामनगर में 750 बेड का एक हॉस्पिटल डेडिकेट किया गया, यह भी हम सबके ध्यान में है। अमृतसर नांदेड़ की एयर फ्लाइट शुरू हो, इस बात का भी प्रयास हुआ। विभिन्न स्थानों पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलें, इस बात का भी प्रयास हुआ। तो इस तरीके से हर तरीके से प्रयास हुआ कि हम अपने सिख भाइयों को अपने धार्मिक स्थलों पर पहुंचने में भी सहयोग करें और उसके साथ साथ सिख गुरुओं के योगदान को हम हमेशा याद रखें। ये जो वीर बाल दिवस की बात हमारे सभी लोगों ने की है, ये फैसला वीर बाल दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया में ये बताने का प्रयास किया है कि सिख समुदाय ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, यह बात भी दुनिया के सामने आई है। तो यह भी हम सबको साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की आज जो शहादत है, उसको दुनिया के सामने आज 26 तारीख को हम लोग सबको याद करते हैं। दुनिया, देश को पता चलता है कि सिख कौम ने और सिख गुरुओं ने किस तरीके से देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया और जिस तरीके से उस समय का काला समय था, जो एक डार्क पीरियड था, उस समय किस तरीके से सिख कौम आगे आकर के उन्होंने अपना योगदान किया, यह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। उसी तरीके से ये जो ब्लैकलिस्ट की बात हुई है, अब यह भी कहना आसान है, पॉलिटिकल असाइलम लेकर चले गए थे, क्यों नहीं हाथ डाला गया? 30 साल से ज्यादा हो गया था। आज ये खुशी की बात है कि उसमें से 312 परिवार वापस हरमंदिर साहब पर आकर के मत्था टेकते हैं और अपने मातृभूमि को याद करके यहां पर आते हैं। ये भी हम सब लोगों ने देखा। 1984 का सिख राइट्स, मैं तो दिल्ली था, मैंने देखा है वो मंजर हमने देखा है। 30 साल तक 30 इयर्स कोई अरेस्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं, और एक राजनीतिक दल के लोगों को प्रोटेक्शन, उस प्रोटेक्शन में वो चलते रहे, किसी ने नहीं पूछा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एसआईटी बैठाई, एक्शन हुआ और 35 साल बाद आजीवन कारावास में वो गए जो लोग उसके दोषी थे इस तरीके की एक्टिविटी। हमारे गुरुद्वारे जो अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं और आगे चलते हैं, लेकिन वहाँ टूरिस्ट फैसिलिटी डेवलप्ड हो, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं बाहर डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रोड्स, कनेक्टिविटी ये हो। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व में एक टूरिस्ट सर्किट के तहत, रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट के तहत हमारा अनंतपुर साहब, फतेहगढ़ साहब, हमारा चमकौर साहब, फिरोजपुर, अमृतसर, हमारा कलानौर, इन सभी जगह के गुरुद्वारों को इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो आगे चल रहा है, यह भी हम सब लोगों को मालूम है। मित्रों, मैं अगर गिनाने लगूं तो लिस्ट बड़ी लंबी है और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा जो घोष साहब ने कही और बाकी सब लोगों ने भी कही कि मोदी जी ने दृढ़ संकल्प के साथ जो फैसले नहीं होते थे उन फैसलों को लेकर के, न्याय दिला करके
देश की एकता अखंडता के साथ सिख कौम को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, तो वो पूरी ताकत के साथ किया। मुझे पूरा विश्वास है ये कॉफी टेबल बुक जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इसका उपयोग करें, खुद भी पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं और बताएं कि किस तरीके से देश की सेवा में सिख समुदाय, सिख कौम, सिख धर्म ने किस तरीके से अपना योगदान किया है और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको मुख्य धारा में ला करके वह जो अनिर्णय की स्थिति थी उससे निकाल करके निर्णय लेकर के वह काम किया जो कोई देश का नेता आज तक नहीं कर पाया, और इस काम को किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत लंबा समय हो गया है आपके, और आप ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती कर रहा 2 मिनट बैठे रहो, ਆਪਾਂ नड्डा साहब का सम्मान करना है।